ریمانڈ ملا اور اس کے بعد سبسیکوینٹ ریمانڈ ہمیں نہ مل سکا۔ اسی دوران سی پی ایل سی کی مدد سے اور ایک حساس ادارے کی مدد سے ہم نے وفاقی حساس ادارے کی مدد سے مزید انویسٹیگیشن کو کنٹینیو کیا۔ اگر ریمانڈ مل جاتا تو ہم ایک انویسٹیگیشن کا تو وہ چیپٹر تھا، لیکن پیرالل انویسٹیگیشن ہم لوگ کرتے رہے وفاقی ادارے کی مدد سے، سی پی ایل سی کی مدد سے۔ اور اس میں جو سیکنڈ کو ایکیوز ہے جس کا نام شاویز، ایکچوئل نام شراز ہے، عرف شاویز، شراز بخاری، جو اس کے ساتھ کو ایکیوز تھا، اس کو ہم نے ابھی اریسٹ کیا ہے۔ اور اس کو اریسٹ کرنے کے بعد ہمیں سارا کرائم سین سے لے کے ایوری تھنگ ٹو دا ڈسپوزل کہ یہ کیس کس طرح ہوا اور اس کا انہوں نے کس طرح اس کیس میں مصطفیٰ عامر کو قتل کیا، اس چیز کی ہمیں بہت ساری ایویڈنس بھی مل گئے ہیں، شواہد بھی مل گئے ہیں، اور شراز کی طرف سے ایکسیپٹنس پولیس کے آگے ابھی تک ہمیں ملی ہے، جس کو ہم کل انشاءاللہ ریمانڈ کے لیے پیش کریں گے۔ اس سلسلے میں شراز نے بتایا ہمیں ڈیورنگ انویسٹیگیشن، اور ساتھ ان کے جو یہی چیز کوربوریٹ کرتی ہے جو ارغمان کے جو دو امپلائیز ہم نے کویسچننگ کے لیے ڈیٹین کیے تھے، ان کے بیانات کے ساتھ کہ مصطفیٰ عامر جس دن مسنگ ہوئے 6 جنوری 2025، تو رات کو وہ ارغمان کے گھر پہ آئے تھے۔ وہاں پہ ایک لڑائی جھگڑے کے بعد، فائرنگ کے بعد ان کو قتل کیا گیا، جو کہ اب تک ہمیں شواہد ملے ہیں اور اب تک کے بیانات کے مطابق۔ اور اس کے بعد باڈی ڈسپوز آف کرنے کے لیے ان کو بلوچستان کے ضلع ہب کے پاس ایک پولیس اسٹیشن دراجی ہے، اس کے پاس گاڑی سمیت اس کو وہاں ڈسپوز آف کیا گیا، ان لوگوں نے قتل کرنے کے بعد جلا دیا۔ وہاں پہ ڈسپوز آف کرنے کا طریقہ واردات ان کا یہ تھا کہ انہوں نے وہاں پہ لے جا کے بدقسمتی سے بڑے سیڈ طریقہ ہے کہ اس کو جلا دیا گاڑی سمیت، اور اس کے بعد یہ پھر واپس آ گئے تقریباً دوپہر کے وقت۔ تو یہ پورا چین آف ایونٹس جو ہے ہم نے انویسٹیگیٹ کیا ہے اور ایویڈنس کلیکٹ کیے، اور اس کے بیانات سے چیزیں کنفرم ہوئی۔ وہاں کہہ لیں آپ یا راستے میں جہاں جہاں رکے ان سب کے بیانات ہم نے سب کو کیلکولیٹ کر کے ویلیڈیٹ کیا ہے۔ اس سلسلے میں ایک آلریڈی ہب میں تھانہ دورجی میں ایف آئی آر درج تھی نامعلوم جلی ہوئی گاڑی کی اور نامعلوم لاش کی۔ اس لاش کو بلوچستان پولیس نے ایدی کے حوالے کیا، جس نے اس کو سبسیکوینٹلی بعد میں ایک جگہ پہ دفنا دیا ایز لاوارث لاش سمجھ کے۔ اور اس کی ابھی انشاءاللہ ہم فردر انویسٹیگیشن میں باڈی کو ایکزیوم کر کے ڈی این اے انالیسس کر کے چیزوں کو ریکنفرم کریں گے ابھی، اور باقی ہم انشاءاللہ اس کے گرفتار تو ہو گئے ہیں اور ریمانڈ میں ریمانڈ کے لیے کل انشاءاللہ پیش کیا جائے گا، اور پھر مزید ریمانڈ بھی جو ارغمان کا ہم اپلائی کریں گے، اور ہوپ فلی مزید انکشافات جس میں ابھی ہماری چیزوں کو کنیکٹ کرنا ہے، ان کا رول سی سی ٹی وی کے ساتھ کنیکٹ کرنا، گاڑیوں کی موومنٹ، یہ ساری چیزیں ابھی فردر انویسٹیگیشن از آن گوئنگ، اور فردر چیزیں اس میں انشاءاللہ کنفرم ہوں گی۔ اچھا یہ بتا دیجیے گا یہ واردات کس طرح ہوئی ہے؟ اس کو گھر پہ قتل کیا گیا ہے، گاڑی میں لے کے ہب گئے، وہاں جلایا گیا ہے، جو آتا ہے ان کے بھی تحفظات ہیں، تو مجھے یہ بتائیے کہ واردات کس طرح ہوئی ہے؟ یہ تینوں گھر پہ بیٹھے تھے، وہاں فائرنگ ہوئی ہے، یا گاڑی لے کے ہب میں گئے وہاں جلایا گیا ہے؟ دیکھیں یہ دوست ہیں ارغمان اور شہباز، یہ قریبی دوست ہیں، کلاس 1 سے لے کے 7 تک ساتھ پڑھے ہیں اور یہ ساتھ ہی ہوتے ہیں۔ مصطفیٰ عامر بھی ان کا دوست ہے، یہ نیو ایئر کے دن بھی ایک ساتھ تھے، وہاں پہ تھوڑی بہت ان کی کوئی بات چیت ہوئی تھی، آپ کہہ لیں چپکلش کہہ لیں، یا تھوڑی بہت کوئی ایسی لڑائی نہیں تھی۔ تو اس سلسلے کی کنٹینیوٹی میں اب یہ بیٹھ کے وہاں پہ اس 6 تاریخ کی رات کو مصطفیٰ عامر کو فون کر کے بلایا تھا ارغمان نے، وہاں بیٹھ کے انہوں نے تھوڑی دیر باتیں کی اور پھر ان کی کسی بات پہ آپس میں لڑائی ہوئی، اور اس کے بعد اس نے جو اب تک ان کے بیانات جو بتاتے ہیں اور جو شواہد ملے ہیں جس سے یہ چیز کافی حد تک کنفرم ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ وہاں لڑائی کے دور کر کے اس کو وہاں پہ مارا، کافی سیریسلی اس کو مارا ہے ان دونوں نے، اور اس کے بعد اسی کی گاڑی میں رکھ کے ڈگی میں ڈال کے یہ اس کو لے کے گئے ہیں ہب کی طرف۔ اس طرح واردات ہوئی ابھی نہیں۔
हमें नहीं कंफर्म, कोई ऐसी मेन वजह नहीं पता चल सकी कि जिस तरह डिस इन्फॉर्मेशन बहुत सारी है कि पैसे की लड़ाई थी, ये लड़ाई थी। अभी तक इन्वेस्टिगेशन अभी फर्दर क्लियर हो जाएगा कुछ। सामने बता दीजिएगा ये दोनों मंशियात फरोश थे, जो इससे कमल भी इनके पास है, उसके अलावा और जो चीजें हैं, महंगी चीजें मिली हैं, कंप्यूटर मिले हैं, अरमगान बेसिकली है क्या, करता क्या? अरमगान के पास से जो है हमें तकरीबन मेरे ख्याल में 64 लैपटॉप्स रिकवर हुए हैं। अब तक की इन्वेस्टिगेशन में ये कॉल सेंटर रन करता था और इसके अलावा इसका मेन काम ये था, या क्रिप्टो का भी काम शायद ये करता था। लेकिन ये सारी चीज़ें अभी वर्बल हैं, कुछ डेटा जो है हमने टेक्निकल FIA से अब लेंगे, कुछ हम लोग फोरेंसिक लैब से रिकवर करेंगे, कुछ डेटा डिलीटेड है, तो ये चीज़ें फर्दर क्लियर होंगी कि इसकी इनकम कहाँ से थी, कितनी थी, पैसा कितना आ रहा था, कहाँ जा रहा था। अच्छा सर, ये बताइएगा, अदालत ने आपको पहले रिमांड नहीं दिया और अदालत ने उसको जेल कस्टडी कर दिया। आप पूरी एपिसोड में अदालत क्योंकि आपके खिलाफ, पुलिस पार्टी के खिलाफ ऑलरेडी FIR करने का भी कह चुकी है, तो अदालत तो उसकी तरफ खड़ी की नजर आती है और आप अब दोबारा रिमांड लेने जाएंगे तो केस को किधर देखते हैं? और दूसरी बात ये है कि इस पूरे एविडेंस में जो लाश को आप कंफर्म कर रहे हैं, गाड़ी को कंफर्म कर रहे हैं, क्या ये मुल्जिम पॉइंटेशन कर रहा है? जी, ये मुलजिम की पॉइंटेशन पे कि जिसने जो अपना बताया कि हम लोगों ने किधर डिस्पोज ऑफ किए, फिर हमने लोकल पुलिस वहाँ की जो है उससे कंफर्म किया कि इस रात को कोई इंसिडेंट हुआ है, तो उन्होंने बताया कि हमें गाड़ी और जो उसके अंदर लाश बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह उसने हमें बलूचिस्तान पुलिस से कंफर्म किया इन चीज़ों का। अच्छा, ये दोनों थे गाड़ी जलाने में, आग लगाने में? जी, दोनों थे। ये दो थे। दोनों ने काम अभी तक जो हमारी इन्वेस्टिगेशन कहती है दो थे, मे भी आगे जाके चेंज हो जाए इन चीज़ें। रिमांड हासिल ना करना, इसको इसकी जिम्मेदारी, क्योंकि हाई प्रोफाइल केस है, इसके अंदर DSP और एक जवान जो है उसमें जख्मी हुए हैं, फायरिंग हुई है, रिमांड नहीं मिलना, इसमें किसको कसूरवार करार देंगे? क्या आपका इस्तिगासा कमजोर था? और डेड बॉडी लेकर एक शहर से दूसरे शहर मुंतकली, कहीं चेकिंग नहीं हुई, ये क्या इसकी वजह है? देखें, दो चीज़ें, रिमांड की हमने एप्लीकेशन जमा कराती है पुलिस, पहले की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट रिमांड हमने जमा कराया। कोर्ट के अपने रीजंस हैं, कोर्ट ने एक्सेप्ट नहीं किया, उसके अपने रीजंस हैं, उससे अगला फोरम है, हम इंशाल्लाह उस पर फाइल करेंगे, रिमांड हमें मिल जाएगा। देखिए, प्रोसीजरल कुछ प्रोसीजर्स हैं, मे बी वो डिसीजन कोर्ट का अपना है, कोर्ट ने कोई चीज़ हमारी एक्सेप्ट नहीं की होगी, हम नेक्स्ट फोरम पे जाएंगे, देयर इज ऑलवेज अ रेमेडी टू इट। देखिए, नेग्लिजेंस नहीं है, देखें इसमें नेग्लिजेंस नहीं है, मे बी, हाँ, आई एग्री, ये सिर्फ DSP नहीं, एक इससे ज़्यादा हाई प्रोफाइल है कि मुस्तफ़ा आमिर मिसिंग है, ठीक है, उसका मोबाइल फ़ोन रिकवर हो रहा है। देखिए, ये सारी चीज़ें कल हम इंशाल्लाह जाएंगे, डेड बॉडी की रिकवरी जो हम जिसकी कंफर्मेशन हमें करनी है बेसिकली कि डेड बॉडी है या नहीं। देखिए, अभी नहीं, मैं ये नहीं कह सकता। देखिए, एक प्रोसीजर है कानून का, वो मे भी हमारे उसमें कोई लिमिटेशन हो जिसने कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, और उसकी वजह से ये हुआ। हमारे पास नेक्स्ट फोरम है, कोर्ट का प्रोसीजर्स हैं, हम नेक्स्ट फोरम पे जाके इंशाल्लाह हमें मिल जाएगा। देखिए, ये ऐसी कोई बात नहीं है। मुस्तफा का मोबाइल फोन से घर से मिला था, कुछ मजीद DNA अटैचमेंट्स मिले हैं मुलजिम के घर? देखें, हमने ऑलरेडी जो कारपेट स्टेन्स हैं उनको DNA एनालिसिस और उसके फैमिली के साथ मैचिंग के लिए भेज दिए हैं। इसकी रिपोर्ट में टेक्स अबाउट अ वीक और सो। अच्छा, इसी बात की कंटिन्यूटी ले लें कि एक मास्टरमाइंड है, उसने कराची में भी डेड बॉडी को डिस्पोज ऑफ नहीं किया, उसने शनाख्त मिटाने के लिए गाड़ी भी जला दी, लाश भी जला दी, उसने सारे एविडेंसेस मिटा दिए, तो मोबाइल कैसे रह गया उससे? मोबाइल देखें आप, हाँ, आपकी इट्स अ गुड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमने भी किया, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसके अगर आप कमरे में जाए ना, तो उसका कमरा वाज उस कमरे में एक केओस था, उसका लिविंग स्टाइल जो था ना, उसमें बहुत कचरा था, कोई ऑर्गेनाइज्ड रूम नहीं था। तो लकीली और अनलकीली आप कह लें वो वहाँ पे रह गया होगा, मे बी उस वक्त लड़ाई हुई, ये डिस्पोज ऑफ कर सका या वहाँ पड़ा रह गया, यानी कि इससे मिस हो गया, मिस हो गया प्रॉब्ली। अगर ये मोबाइल ना मिलता तो एविडेंस नहीं, फिर हमारे पास ब्लड स्टेन भी थे, ब्लड स्टेन अगर DNA के मैच कर रहे हैं 1 महीने बाद, अगर मैच करते हैं, देखिए अभी रिपोर्ट आएगी तो वी कैन ऑलवेज वेरीफाई दैट। मुकद्दस साहब, 3 माह कबल एयरपोर्ट ब्लास्ट हुआ, हब चौकी के ऊपर बड़ी सिक्योरिटी कर दी गई, कैमरास लगा दिए गए, बोला यहाँ से ना तो कोई BLA का बंदा जाएगा ना आएगा, गाड़ियाँ चेक होंगी। कराची से लाश बलूचिस्तान धोराजी मुंतकिल हो गई, किस तरीके से लाश चली गई? क्या हमारे पास कोई पिकेट पॉइंट्स नहीं थे, कोई हमारे पास कोई इधर सर्वेलेंस नहीं थी कैमरास की, या फिर हम लोग की नेग्लिजेंसी है ये? इसमें एक चीज ऐड कर लीजिएगा, गाड़ी जली भी बरामद हुई, उसके इंडियन चेजिस नंबर से जो है वो पता लग सकता था कि किसकी गाड़ी है, किसके नाम पर है। बलूचिस्तान पुलिस ने आपसे देखें, वो गाड़ी रजिस्टर्ड नहीं है। देखिए, बलूचिस्तान पुलिस ने रब्ता किया, हमसे रब्ता नहीं किया। बलूचिस्तान पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है वो आप उनसे पूछ सकते हैं कि उन्होंने इन्वेस्टिगेट
मिशन में क्या किया, दूसरा रजिस्टर्ड थी नहीं रजिस्टर्ड थी। अभी हम ये देखें, इन्वेस्टिगेशन अभी क्लोज नहीं हुई है। अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ अभी तक क्या हुआ है, आगे क्या होगा, यहाँ से कैसे चली गई गाड़ी, कैसे आगे जो आप पूछ रहे हैं, ये इन्वेस्टिगेशन में चीजें क्लियर अच्छा, एक चीज बताइए, एक एफआईआर बलूचिस्तान में दर्ज है, तो क्या ये मुलजिम बलूचिस्तान के हवाले होगा या नहीं, ये यहीं पे होगा। देखें, ये एक क्राइम यहाँ पे हुआ है, ये कंटिन्यूटी ऑफ इट्स अ सेम ट्रांजैक्शन। वो अभी वो प्रॉब्ली एफआईआर तो कैंसिल हो जाएगी ना, इसी ट्रांजैक्शन का हिस्सा है। क्राइम हुआ है, क्राइम की कंटिन्यूटी में सारी चीजें हो रही है ना। सर कोर्ट की तरफ से 2 दफा आप लोग के रिमांड कैंसिल हो गए, जहाँ तक मेरी नॉलेज है। तो क्या अब जो भी हो रहा है, मैं तफसीलात में नहीं जा रहा है कि बायसनेस है या नहीं है, लेकिन क्या आपको फाइट करने के लिए कोई अच्छा लॉयर की जरूरत महसूस हो रही है? नहीं, हमारे साथ पीजी ऑफिस बड़ा स्ट्रांगली खड़े हैं। सर प्रैक्टिकली इतने एविडेंसेस के बाद भी रिमांड नहीं देखिए हमारे साथ हैं। देखिए एक सीक्वेंस ऑफ वो है, प्रोसीजर्स है हर चीज़ के ना, रेमेडीज हैं हर जगह। तो वी विल गो, हमारे साथ पीजी ऑफिस है, हमने आज होपफुली फाइल कर दिया है नेक्स्ट स्टेप पे। या इनके पावर कार्टेल्स पे ताल्लुक रखते हैं? देखें, वी कैन नॉट से दैट मुलजिम का के ड्रग डीलर था नहीं था, मिसिंग वाला था नहीं था, अभी चीज़ें फर्दर कुछ अरसे बाद चीज़ें क्लियर नहीं, ऐसे अभी तक हमारे पास ऐसी चीज़ नहीं है। मैंने आपको मैंने इसीलिए कहा कि अब तक कि हमारी इन्वेस्टिगेशन ने इस चीज़ को वेरीफाई किया है। गाड़ी को देखें, गाड़ी उसी डेट, कुछ चीज़ें ना सब्सटेंशियल एविडेंस इंडिकेट करते हैं। मैंने आपको इसलिए शुरू में कहा कि अब तक इन्वेस्टिगेशन है और उसको बॉडी एग्ज्यूम करके, अगर आपको याद हो थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि हम इसको वेरीफाई करेंगे डीएनए एनालिसिस के साथ। अब तक की देखें डेट वो है, टाइम वो है, एक यहाँ से एक आदमी गवाह हैं, एक नहीं 2-2 3-3 गवाह हैं, गाड़ी वहाँ पहुँच रही है, सेम मॉडल की गाड़ी है, तो ये चीज़ें वेरीफाई हो रही हैं और टाइमिंग भी मैच कर रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं हो सकता जैसे अरमुगान ने पहले बयान तब्दील किया था, वो कह रहे कि नहीं ये तो देखिए, मैं आपको इसीलिए कहा ना, हमें इसको वेरीफाई करने दें डीएनए एनालिसिस को, क्योंकि ये मैं आपको इसी का प्रेस ब्रीफ है। रीज़न ये है कि डिस इन्फॉर्मेशन ना फैले। पहले एक इन्फॉर्मेशन थी कि मलिक किसी ने कह दिया कि वहाँ मिल भी गई है, समथिंग लाइक दैट। पर्पज़ ये है, मैंने आपको बताया कि बॉडी अभी हम एक्ज्यूम करेंगे, कोर्ट के थ्रू इसकी बॉडी एक्ज्यूम होगी, उसके बाद डीएनए एनालिसिस होगा, इसका फिर कंफर्मेशन। मीडिया पे ये बहुत सारी चीजें चल रही हैं कि इसने घर में शेर पाले हुए थे, इसकी लाश शेर को खिला दी इसने, इसमें क्या नहीं ऐसी कोई चीज़ नहीं। अर्गवान जो है ये बताते हैं जराए कि ये इसके ताने बाने बैनुल अक़वामी मंशियात डीलर से मिलते हैं, ये बहुत ही बाअसर है। तो इसने तफ्तीश में दौरान तफ्तीश को इंकशाफ किया है इस तरह का, ये जरा वजाहत करें सर। इसमें ये भी ऐड कीजिएगा, मुस्तफा पे जो है एएनएफ ने जो है 1 जनवरी 2024 में मुकदमा भी दर्ज हुआ था। मंशियात के केस में ये गिरफ्तार हुआ, जेल गया। क्या ये कोई मंशियात वगैरह का एक गैंग का आपस का झगड़ा तो नहीं था? देखें, मुस्तफ़ा आमिर पे केस था मंशियात का, एएनएफ का, ये बात सही है। और वो मेरा ख्याल है उसी दिन जिस दिन मिसिंग हुआ उसकी हियरिंग भी थी। लेकिन इस केस में हम लोग बेसिकली पहले तो हम किडनैपिंग फॉर मिसिंग था, फिर ये किडनैपिंग फॉर रैंसम हुआ, अब ये एक कत्ल का केस है स्ट्रेट अवे, जहाँ तक हमें नज़र आ रहा है, एविडेंस जो इंडिकेट कर रहे हैं। अब इसमें मुनशियात का जो चैप्टर है, मजीद इन्वेस्टिगेशन में कोई चीज़ सामने आती है तो हम आपको उसके बाद सब्सिक्वेंटली कंफर्म करेंगे। अभी तक जो इंटरनेशनल गैंग ऑफ कार्टेल है या ड्रग्स की इन्वॉल्वमेंट थी एक इंसान की, लेकिन अब पूरा ग्रुप था नहीं था, कार्टेल था, ये किस लेवल का था या छोटा सा इशू था, वो हम अभी आपको वेरीफाई कोई नहीं कर सकते। कहा जा रहा है कि रेड के दौरान भारी रकम भी जो है वो बरामद हुई है घर से, ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है, भारी रकम कोई बनी हुई। आप हमारे साथ इस रेड में पुलिस थी, CPLC थी, आप लोग मीडिया भी वहाँ था, जो रिकवरी हुई है, वेपन्स आपने देख लिए हैं, और उसके अलावा एमिनेशन काफ़ी हैवी हुआ है, लैपटॉप्स हुए, वो सारी चीज़ें जो हैं आप कर ली है। अब आप लोग देखिए। न्यास कोसो ने अपनी फेसबुक तहरीर में लिखा है कि अनिल हैदर को ये तफ्तीश नहीं देनी चाहिए थी, इसके आप क्या कहेंगे? अब वो फेसबुक पोस्ट पे कोई क्या लिख दिया आप